Good morning, all of you. Today, I, Naveen Garg from BSc Chemistry Honors Final Year. I am here to give my presentation for the internal assessment of physical glue on the topic of Raman spectroscopy. What is Raman spectroscopy? Raman spectroscopy basically deals with the scattering of light and not with its absorption. Firstly, we will study about the quantum theory of Raman spectroscopy. Basically, quantum theory means the particle nature of EM wave, electromagnetic wave. So, firstly, consider a photon of a frequency mu falling on a molecule. If a collision is elastic, there are two cases arise. First is if a collision is elastic, then the scattered photon will have a same energy as that of an incident photon. Case 2, if however the collision is inelastic, then the scattered photon will have the either of the higher energy or a lower energy than that of an incident photon. If we further assumes that the total kinetic energy of a photon and the molecule remains unchanged before and after collision, then from a law of conservation of energy, that is energy before collision is equals to energy after collision. Energy before collision is energy of incident photon plus energy of molecule before collision is equals to energy of scattered photon plus energy of molecule after collision. So it is the energy of a incident photon and this is the energy of a scattered photon. This is E is the energy of before molecule before collision and E dash is the energy of a molecule after collision. So this equation will be written as this. We will rearrange this and E dash minus E upon H is equals to nu minus nu dash. This is our equation number 2. Now consider now the following cases. Case number 1, that is when the frequency of incident wave is equals to the frequency of the scattered photon, so that E is equals to E dash. This case is of relay scattering. What is relay scattering? Basically, relay scattering is nothing but the scattered photon has a frequency or energy as that of the incident photon. Case 2, when the frequency of incident photon is less than the frequency of the scattered photon. In that case, energy of incident photon energy before molecule is greater than the energy of a molecule after collision. Case 3, when the frequency of incident photon is greater than the frequency of the scattered photon. In that case, the energy of a molecule before collision is less than the energy of a molecule after collision. These both cases are read under a Raman spectra. So, what is the definition of Raman spectra? Raman scattering, when the particle photon collides with the molecule, the collision is inelastic. Then the energy may be either transferred to the molecule, which means the energy is increased, or taken away from a molecule, means energy is decreased from the molecule. This is our Raman scattering. Now take an example. हमने कोई भी एक तबला टाइप ले लिया, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, यहाँ पे हमने कोई एक वेव हमने ट्रांसफ़र की इसको, तो ये पहले रेस्ट में था, हमारे पास जो इसका सरफेस था वो रेस्ट में था. हमने इसको अपनी एक एनर्जी ट्रांसफ़र की हाथ से, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर गया और इसने E2 एनर्जी की जो वेव है उसको एमिट कर दिया. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, E1 था, उसने अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की जिससे कि इसका सरफेस वाइब्रेट होना शुरू हो गया और बाकी की बची हुई E2 एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी. तो इस केस में जो E2 होगा वो लेस देन होगा E1 से. केस E1. दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहले से ही ये वाइब्रेट कर रहा था ये सरफेस, हमने फिर उस पर एक E1 एनर्जी की कोई हमने एक वेव अप्लाई की और उसमें क्या हुआ, अब यहाँ से जो वाइब्रेट कर रहा था, तो वाइब्रेशन के टाइम पे इसका जब ये एनर्जी ऊपर थी तो इसकी और इसकी मैच हुई फ्रीक्वेंसी और अब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ E2 इसने एमिट कर दी. इस केस में ये ऑलरेडी वाइब्रेटिंग कर रहा था, तो इस केस में है जो हमारे पास E2 होगी, जो एनर्जी निकली होगी वो E1 से कहीं ना कहीं क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो ये हमारे पास केस हो गया इन इलास्टिक कोलिजन का. केस 1 जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है, केस 2 जब एनर्जी बढ़ जा रही है. अब आगे, इफ़ अ फोटोन, कोई भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पे कोई भी फोटोन पड़ रहा है, तो फोटोन ने मॉलिक्यूल को उतनी सफिशिएंट एनर्जी
ट्रांसफ़र कर दी, जिससे कि मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल रोटेशन या बोथ मोशन में चेंज आ गए, तो उसमें उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास उसको हम कहेंगे बेसिकली रमन स्पेक्ट्रा। अब हम आपको 3 डायग्राम्स के थ्रू समझाते हैं कि कैसे हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफरेशन होता है। इफ़ द एनर्जी ट्रांसफर इज मे बी आर नॉट सफिशिएंट टू चेंज इट्स रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, देन इन दैट केस मोलिक्यूल स्कैटर्ड इज टू बी अ सेम एनर्जी एज दैट ऑफ अ फ्रिक्वेंसी। इस केस को हम क्या कहेंगे, रिले स्कैटर कहेंगे बेसिकली। लाइक हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास एनर्जी आएगी, और यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे हम स्पेक्ट्रल लाइंस देखेंगे कि हमारे पास किसकी कैसी क्या लाइंस आती है। तो हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 1 हमने कंसिडर कर लिया कि हमने एक मॉलिक्यूल 1 लिया है, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी जो स्टेट है, हमने कोई भी एक इवन एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी इसको, इवन एनर्जी का कोई भी एक फोटोन आया और इस मॉलिक्यूल पे पड़ा। इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये चला गया हायर स्टेट पे। ये कोई वर्चुअल स्टेट पे चला गया। कुछ टाइम के बाद जब ये हमारे पास फोटोन रिटर्न आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट पे, तो इवन एनर्जी की ही लाइट को, फोटोन की लाइट को एमिट कर देगा। तो इवन एनर्जी आई, इवन एनर्जी एमिट हो गई। बेसिकली क्या हुआ, मॉलिक्यूल ने कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं की। बेसिकली क्या हुआ कि जितनी एनर्जी आई थी उतनी की उतनी ही चली गई। एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और ये हमारे पास किसका केस होता है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या हम बेसिकली स्टडी आउट करते हैं, रेले स्कैटरिंग। ये हमारे पास रेले स्कैटरिंग। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, अलग मॉलिक्यूल था, ठीक है, इस पे कोई एक एनर्जी E2 का फोटोन आके गिरा और इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अपनी विजुअल स्टेट पे चला गया, विजुअल स्टेट पे चला गया। अब केस क्या आता है कि जब ये एमिट होगा, जब ये वापस अपनी लोअर स्टेट पे आएगा, तो लोअर स्टेट पे ना आके ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आके रुक जाता है, फर्स्ट स्टेट पे रुक जाता है। अब जब मॉलिक्यूल यहाँ से आ गया था तो इसने इतनी एनर्जी इसके पास थी, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आया तो इतनी एनर्जी इसने एमिट कर दी यहाँ आने में। लेकिन अभी तक यहाँ से यहाँ आने में जो एनर्जी लगती है वो इसके पास, मॉलिक्यूल के पास अभी भी बची हुई है। इसने एमिट करी एनर्जी E2 डैश, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, E2 डैश क्या होगा, बेसिकली कम होगा किससे, E2 से। तो ये क्या, किसका केस होगा, इनइलास्टिक का, इनइलास्टिक कोलिजन का। और इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली स्टोक्स लाइन। अब केस थर्ड पढ़ते हैं कि कोई मॉलिक्यूल, हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल था, इसने कोई E3 एनर्जी का कोई फोटोन आके गिरता है और ये वापस अपनी वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वर्चुअल स्टेट में चला गया। अब जब ये वापस आता है तो वापस आने के बाद क्या कह रहा है, ये वापस आता है, सॉरी हम दूसरा केस लेते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। कोई हमारे पास मॉलिक्यूल अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, अब यहाँ पे E3 एनर्जी का कोई फोटोन आके इस पर गिरा और इसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करी और अपनी वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब यह वर्चुअल एक्साइटेड स्टेट में जब मॉलिक्यूल गया और उसके बाद जब ये अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में आने की, वापस एनर्जी रिलीज करके नीचे लोअर एनर्जी में आने की कोशिश करेगा, तो इस केस में मान लो ये एनर्जी का जो फोटोन का जो मॉलिक्यूल था, एक्साइटेड मॉलिक्यूल, ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ना आके GS स्टेट में आके रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने एनर्जी एमिट कर दी E3 डैश। जो E3 डैश होगा वो ज़्यादा होगा E3 से। इस केस में क्या होगा, ये भी इनइलास्टिक कोलिजन है। और ये क्या होगा, एंटी स्टोक्स लाइन।
और स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन किसके एग्जाम्पल होंगे हमारे पास, बेसिकली रमन स्पेक्ट्रा के।